OIC کے ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے زور دیا کہ تمام اسلامی ممالک قرآن پاک اور پیغمبر اسلام کی توہین کے واقعات کی روک تھام کے لیے اجتماعی اور ٹھوس اقدامات کرے۔ قرآن پاک اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے بین الاقوامی قانون کی فوری اطلاق کی ضرورت ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پاک فوج کے میجر اور نائب شہید ہو گئے۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے فرار کے راستوں کو روکنے کے لیے ناکہ بندی کی، جس پر دہشت گردوں نے گھات لگا کر حملہ کیا اور سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی۔ فائرنگ کے نتیجے میں میجر ثاقب حسین اور نائب باقر علی شہید ہو گئے، جبکہ ایک جوان بھی زخمی ہوا۔ اسرائیل کا مغربی کنارے میں جنین کے پناہ گزین کیمپ میں فضائی حملہ، 5 فلسطینی نوجوان شہید، 27 زخمی ہو گئے۔ 8 کی حالت تشویشناک ہے۔ یعنی شاہدین نے بتایا کہ کم از کم 10 فضائی حملے کیے گئے، جن میں سے ایک میزائل حملہ تھا۔ شہید ہونے والے افراد کی شناخت نہیں ہو سکی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں غیر معمولی اضافے کے ساتھ کاروبار کے آغاز اور نیا ریکارڈ قائم ہونے پر قوم اور کاروباری برادری کو مبارکباد پیش کی کرتے ہوئے کہا کہ ہماری مسلسل محنت اور درست پالیسیوں کے نتیجے میں معاشی بحالی کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ ملک دوبارہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو چکا ہے۔ شدید مایوسیوں کے بعد امید کا نیا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ سعودی شہزادہ طلال بن منصور بن عبدالعزیز انتقال کر گئے۔ سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق شہزادہ طلال بن منصور کی نماز جنازہ گزشتہ روز مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں ادا کی گئی۔ وہ معروف سرمایہ کار اور سعودی الاتحاد کلب کے سابق سربراہ تھے۔ جہانیہ کے نواحی گاؤں میں گیس سلنڈر دھماکہ، 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ نواحی گاؤں چک نمبر 133 10 میں واقعہ پیش آیا، جہاں گیس لیکیج کے باعث سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا۔ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر پوری دنیا میں مسلمانوں سمیت عالمی برادری کی جانب سے شدید رد عمل کا سلسلہ جاری۔ عراق میں فٹ بال لیگ کے دوران ٹیمیں ریفریز میچ کے آغاز پر ہاتھوں میں قرآن مجید کے نسخوں کے ہمراہ شریک ہوئے اور بوسہ دیتے ہوئے دکھائی دیے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کے چیئرمین کا الیکشن کرانے کی اجازت دیتے ہوئے حکم امتناع واپس لے لیا۔ عدالتی حکم امتناع پر PCB نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ پاکستان میں لوک موسیقی کے اصل شہنشاہ عالم لوہار کو پرستاروں سے بچھڑے 44 برس بیت گئے۔ چمٹا بچا کر جگنی گانے اور دنیا بھر میں دھوم مچانے والے نامور لوک گلوکار عالم لوہار کی آج برسی منائی جا رہی ہے۔ ہیر وارث شاہ گا کر انہوں نے خوب نام کمایا۔ عالم لوہار پنجاب بھر میں سجنے والے میلوں ٹھیلوں میں صوفیانہ کلام اس انداز میں پیش کرتے کہ سننے والوں پر وجد طاری ہو جاتا۔
सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने नौजवान अदाकाराओं की जानिब से कॉस्मेटिक सर्जरी कराने की मुखालफत कर दी। उन्होंने इंकशाफ किया कि बहुत से लोग समझते हैं कि मैंने भी चेहरे की सर्जरी करवाई है, लेकिन ये गलत फहमी है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने चेहरे को ऐसे नहीं छेड़ा कि चेहरे के कदो हाल ही तब्दील हो जाए। और मुल्क भर में आज से मानसून बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि बहेरा अरब में मरतूब हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं, जिनके बायस 3 से 8 जुलाई के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल और चहलम में आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मच और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने जोर दिया कि तमाम इस्लामी ममालिक कुरान पाक और पैगम्बर इस्लाम की तौहीन के वाक़यात की रोकथाम के लिए इज्तमाही और ठोस इक़दाम करें। इजलास में पाकिस्तान, उर्दन, इंडोनेशिया, मलेशिया, अजरबैजान, मुत्तहदा अरब इमारात, बहरीन समेत रुकन ममालिक की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान शरीक थे। पाकिस्तानी मंदूब बराए इस्लामी ताउन तंजीम फवाद शेर ने पाकिस्तान की जानिब से कुरान पाक की नफरत करार देते हुए कहा कि एक जानिब पूरी उम्मत मुस्लिमा ईद उल अज़हा मना रही थी, तो दूसरी जानिब कुरान पाक को जलाने जैसी घिनौनी और नाकाबिल बर्दाश्त हरकत की गई, जिससे पूरी मुसलमान दुनिया को शदीद तकलीफ पहुंची है। इस मौका पर OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा का कहना था कि कुरान पाक और पैगम्बर इस्लाम की बेहुरमती को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए बैनुल अक़वामी कानून के फौरी इत्तलाक़ की ज़रूरत है, जो मुनाफरात को फैलने से रोकता है। उन्होंने जोर दिया कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए तमाम इस्लामी ममालिक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं और ठोस इक़दाम करें। आपको बताएं कि OIC इजलास के बाद पाकिस्तानी सफीर ने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू भी की। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आप जानते हैं। ये खुसूसी इजलास 2 जुलाई को OIC जनरल सेक्रेटेरिएट के हेडक्वार्टर में हुआ। इस मुनासबत से कि ईद के पहले रोज़ स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में ईद की नमाज के वक्त एक स्वीडन के शहरी ने कुरान करीम की बेहुरमती की, और जिससे मुसलमानों के दुनिया के तूलो अर्ज़ में फैले हुए मुसलमानों के जज्बात नहायत मजरूह हुए। और आपने ये देखा होगा कि पिछले चंद महीनों में इस तरह कुरान पाक की बेहुरमती के जो वाक़यात हैं काफ़ी दफ़ा रुनुमा हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बेहुरमती का बहुत सख्त नोटिस लिया है, और पहले भी जब कुछ अर्से पहले हुआ था उसकी भी सख्त मजम्मत की थी, और इस वाक़े के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और तमाम सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसकी नहायत सख्त अल्फाज में इस अमल की मजम्मत की है। और आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में इसका रिएक्शन आ रहा है। बहुत सारे मतलब EU ने इसकी मजम्मत की है, और बहुत सारे यूरोपियन ममालिक ने, इस्लामी ममालिक ने, OIC के मेंबर स्टेट्स ने। तो आज का जो ये खुसूसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेशन था एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ OIC, जिसका पाकिस्तान मेंबर है, तो इसके अंदर भी मैंने भी पाकिस्तान की तरफ से हमारे मुल्क के जज्बात की मुकम्मल तर्जुमानी की कि ये नहायत ही मलून हरकत है कि कुरान पाक की इस तरह बेहुरमती करना। और इसमें कई मुख्तलिफ़ किस्म के और मेंबर स्टेट्स थे, सऊदी अरब, टर्की, इजिप्ट, UAE,
اور بہت سارے ممالک نے بھی اپنی مختلف تجاویزات پیش کی ہیں، جس کے اندر یہ ایک لائحہ عمل طے کیا گیا ہے کہ ان واقعات کی روک تھام کس طرح کی جائے۔ اب کچھ تھوڑے دیر کے اندر اس جو آج کا ایک غیر معمولی اجلاس تھا، اس کا جوائنٹ کمیونیکے ایشو ہو جائے گا، جس کے اندر تمام تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جاپان کے ساتھ سرمایہ کاری، تجارت، سیاحت اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ جاپان کے سرکاری دورے کے موقع پر ٹوکیو میں جاپانی ہم منصب یوشیما ساسا ہیاشی کے ساتھ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ نجی شعبہ دو طرفہ تعلقات میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ جاپان کے ساتھ تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں، سیلاب متاثرین کی مدد پر جاپان کی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان جاپان کو افرادی قوت مہیا کر سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دورہ جاپان کے دوران میزبانی پر وزیر خارجہ یوشیماسا ہیاشی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان اور جاپان دیرینہ دوست ہیں۔ پاکستانی عوام جاپان اور جاپانی عوام کے لیے گرم جوشی اور محبت کے گہرے جذبات رکھتے ہیں۔ ہم ضرورت کے وقت ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ جاپان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ پچھلے سال ہم نے مسلسل اعلیٰ سطحی تبادلوں کے ذریعے تعلقات میں نئی توانائی اور ولولہ دیکھا ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ کے ساتھ بہت نتیجہ خیز بات چیت کی کہ کس طرح دونوں ممالک ہمارے باہمی تعاون کو مزید گہرا کر سکتے ہیں۔ ہم نے تجارت، سرمایہ کاری، انسانی وسائل کی ترقی اور تبادلے، آئی ٹی، سیاحت اور زراعت جیسے شعبوں میں اپنے باہمی فائدہ مند دو طرفہ تعاون کو مزید گہرا اور بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ دوسری جانب آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کریں کہ آئی ایم ایف شرائط کے مطابق گیس 50% اور بجلی 4 روپے فی یونٹ مہنگی ہو گئی ہے۔ پاکستان کو 12 جولائی کی آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے قبل گیس کی قیمت میں 40 سے 50% اور بجلی کے نرخ میں 3.5 سے 4 روپے فی یونٹ تک اضافہ کرنا ہوگا۔ مذکورہ اضافہ اسٹاف سطح پر آئی ایم ایف سے 3 ارب ڈالرز کے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی راہ ہموار کرے گا۔ ذرائع کے مطابق اوگرا نے 2 جون کو سوئی نوٹرن گیس پائپ لائن کے صارفین کے لیے قیمت میں 50% اضافے کا اعلان کیا تھا، جس سے قیمت بڑھ کر 1238 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو ہو گئی ہے، جبکہ سوئی سدرن گیس کے صارفین کے لیے قیمت میں 45% اضافہ طے کیا گیا تھا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، پاک فوج کے میجر اور نائک شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ہوشاب میں دہشت گردوں کے فرار ہونے والے راستوں پر ناکہ بندی کی، جس پر دہشت گردوں نے گھات لگا کر حملہ کیا۔ دہشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں میجر ثاقب حسین اور نائک باقر علی شہید ہو گئے، جبکہ ایک جوان زخمی بھی ہوا۔ میجر ثاقب حسین نے والدین اور بیوہ سوگوار چھوڑی ہیں، جبکہ نائک باقر علی کے سوگواران میں 3 سال کی بیٹی اور بیوہ شامل ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز بلوچستان کے امن کو سبوداز کرنے کی کوشش ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جعفر آباد میں ڈیرہ اعلی یار بھٹی پھاٹک کے قریب تیز رفتار بس بریک فیل ہونے کے باعث بے قابو ہو کر دکان میں گھس گئے، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر لاش اور زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ بس ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ صادق آباد میں منٹھار روڈ پر 2 موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے۔ حادثے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق زخمیوں میں 2 بچے اور 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثات تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ جی بالکل، آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ صادق آباد میں 2 موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے۔ حادثے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق زخمیوں میں 2 بچے اور 2 خواتین بھی شامل ہیں۔
जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हुजरा शाह मुकीम में रिक्शा खाई में गिरने से 50 साला मेहनतकश ड्राइवर मौके पर जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। गांव राम प्रसाद के करीब रिक्शा बेकाबू होकर खाई में उलट गया, जिसके नतीजे में करीबी गांव धूल गहला का रिहायशी अब्दुल मजीद मौका पर दम तोड़ गया, जबकि रिक्शे में मौजूद 2 मुसाफिरों को खाई से शदीद जख्मी हालत में निकाल लिया गया। वाक़ये की इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 टीम और पुलिस थाना हुजरा शाह मुकीम मौका पर पहुंच गई और जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने नाश तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। तहसील चूनिया के नवाही गांव 32 चक छांगा मांगा नहर पुल पर कार की टक्कर से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक जख्मी शख्स की शनाख्त की जा रही है, जबकि कार ड्राइवर की तलाश जारी। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि तहसील चूनिया के नवाही गांव 32 चक छांगा मांगा नहर पुल पर कार की टक्कर से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक जख्मी शख्स की शनाख्त की जा रही है, जबकि कार ड्राइवर की भी तलाश तेजी से जारी है। खबर शामिल करें पेशावर से, जहां अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बर वक्त निपटने के लिए सरकारी इमारतों समेत अहम और हसास मकामात में खसूसी मशकों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता शब वर्सिक डिवीजन थाना मथुरा की हदूद में खसूसी मशक किया गया, जिसका मकसद सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद बेहतर बनाना था। SSP ऑपरेशंस हारून रशीद खान ने बताया कि CCPO सैयद इशफाक अनवर की खुसूसी हिदायत की रोशनी में SSP वर्सक डिवीजन मोहम्मद अरशद की निगरानी में होने वाली मॉक एक्सरसाइज में DSP वर्सक सर्कल मोहम्मद इसहाक की ज़ेरे क़यादत SHO थाना मथुरा अब्दुल्ला जलाल खान समेत दीगर पुलिस अफसरान के साथ अलबर्क टीम, एलिट फोर्स और मुकामी पुलिस ने भी हिस्सा लिया। पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बर वक्त निपटने का मुजाहरा किया। और दूसरी जानिब IG जेल खाना जात खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद उस्मान महसूद ने सेंट्रल जेल बन्नू का दौरा किया। इस मौका पर सुपरिटेंडेंट जेल ताहिर शहबाज और डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोतसिम ने उनका इस्तकबाल किया है। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। IG खैबर पख्तूनख्वा ने खिदमत फाउंडेशन के ज़िले सदर मोहम्मद जलाल शाह एडवोकेट से मुलाकात की और फाउंडेशन की खिदमात को सराहा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने जेल के मुख्तलिफ इहातों, लंगर खाने और जेल हस्पताल का भी दौरा किया। इस मौका पर IG जेल खाना जात ने जेल के कैदियों के लिए 2 माह की कैद मुआफ़ी का भी ऐलान किया है। तंगवानी में पुरानी दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में खौफनाक तसादुम हुआ। डंडों और फायरिंग के तबादले में 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक तंगवानी जमाल थाना की हदूद गांव अली अकबर मलिक में मलिक बरादरी के 2 फ्रीकैन के दरमियान पुराना तनाज़ा चला आ रहा था। आज दोनों ग्रुपों का फिर आमना सामना हो गया और एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। झगड़े के दौरान डंडों के वार और फायरिंग का तबादला भी हुआ। जख्मी होने वाले तमाम अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, अब आपको अपडेट करें कि उकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी टीम की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। टीम ने 30 फूड पॉइंट्स और एक दूध बरादर गाड़ी की चेकिंग की। फूड सेफ्टी टीमों ने सफाई के नाकिस इंतजामात और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के खिलाफ वर्जी करने पर 4 फूड पॉइंट्स को 21,000 रुपये जुर्माना किया। मजीद बरां 13 फूड शॉप्स को मामूली नकाइस पर इस्लाही नोटिस जारी कर दिए। खबर शामिल करें तांदियावाला से, जहां थाना गढ़ के इलाके में डाकू पकड़ने के लिए रेड करने वाली पुलिस पार्टी पर सहूलतकारों का धावा बोल दिया गया। तशद्दुद से 2 कांस्टेबल जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक खुफिया इतला पर रिकॉर्ड याफ्ता डाकुओं मोहम्मद अली और अहमद अली को गिरफ्तार करने के लिए उनके ठिकाने पर छापा मारा गया तो डाकुओं की पुष्ट पनाही करने वाले दर्जनों अफराद ने पुलिस पार्टी पर धावा बोल दिया। कार सरकार में मुदाखलत और पुलिस से मुजाहमत करते हुए डाकुओं के सहूलतकारों ने पुलिस पर तशद्दुद शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में कांस्टेबल हैदर अब्बास और खालिद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
गंबट शहर में बदअमनी अरूज पर पहुंच गई पुलिस। शहर में अमन अमान कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा कि ईद के 4 दिनों में चोर 6 मोटरसाइकिलों को ले उड़े। शहर में गश्त होने के बावजूद वारदातें नहीं थम रही। मुजाहिरीन का कहना था कि हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं, हुकूमत को ठोस इक़दाम उठाना होंगे। आपको अपडेट करते चलें कि गंबट शहर में बदअमनी अरूज पर है। पुलिस शहर में अमन अमान कायम करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा कि ईद के 4 दिनों में चोर 6 मोटरसाइकिलों को ले उड़े हैं। शहर में गश्त होने के बावजूद वारदातें नहीं थम रही। मुजाहिरीन का कहना था कि हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं, हुकूमत को ठोस इक़दाम उठाने होंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कसूर में थाना खुडियां पुलिस की SHO मलिक कफायत की सरबराही में डिकेट गैंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई हुई। डिकेती और रहसनी की मुतादिद संगीन वारदातों में मतलूब शुएब और शेबी गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से लूटी गई 10,90,000 की नकदी, 1 मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर देपालपुर और लिंक रोड पर वारदातें करते थे। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने 16 संगीन वारदातों का इंकशाफ भी किया। मजीद तफ्तीश अभी जारी है। और दूसरी जानिब कोट छुट्टा के इलाके दरख्वास्त जमाल खान में बाअसर अफराद का दुकान पर धावा। दुकानदार को सरेआम दिन दहाड़े तशद्दुद और कत्ल की धमकियां देते हुए मुल्जिमान हवाई फायरिंग भी करते रहे। तशद्दुद की फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह मुल्जिमान एक मेहनत कश दुकानदार पर तशद्दुद करते हैं और कत्ल की सरेआम धमकियां दे रहे हैं। मुतासरा दुकानदार के मुताबिक जावेद नामी डाकू ने साथियों के हमरा हमला किया और तशद्दुद करते हुए दुकान में मौजूद 10 लाख रुपए नकदी और दीगर सामान भी लूट लिया। मुतासरा शख्स ने IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि कोट छुट्टा के इलाके दरख्वास्त जमाल खान में 62 अफराद का दुकान पर धावा। दुकानदार को सरेआम दिन दिहाड़े तशद्दुद और कत्ल की धमकियां देते हुए मुल्जिमान हवाई फायरिंग भी करते रहे। तशद्दुद की फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह मुल्जिमान एक मेहनत कश दुकानदार पर तशद्दुद करते हैं और कत्ल की धमकियां देते हैं। मुतासरा दुकानदार के मुताबिक जावेद नामी डाकू ने साथियों के हमरा हमला किया और तशद्दुद करते हुए दुकान में मौजूद 10 लाख रुपए नकदी और दीगर सामान भी लूट लिया। मेलसी में थाना टिब्बा सुल्तानपुर पुलिस का मनशियात फरोशों और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। DPO बिहाड़ी के हुक्म पर पुलिस टीम ने चौक मेतला निजाम टाउन में आसिफ गुजर और अकमल गुजर के डेरे पर छापा मारते हुए वहां पर मौजूद 7 मर्द और खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक डेरे पर लड़कियों की खरीदो फरोख्त का कारोबार और बड़े पैमाने पर इंसानी स्मगलिंग भी होती थी। दूसरी कार्रवाई में 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 3 किलो से ज्यादा चर्स बरामद कर ली गई। रावलपिंडी के इलाके रवात में कायम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी सैफरॉन सिटी के नाम पर शहरियों को लूटा जाने लगा। इंतजामिया ने मार्केट में फाइलों की फरोख्त और मार्केट कंपनीज के जरिए अपनी तशहीरी मुहिम चलाकर सरमायाकारों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन उमैर अहमद की रिपोर्ट में। रवात के इलाके मोजा किरपाल कल्याम मुगल में वाक़े गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी सैफरून सिटी RDA इंतजामिया की नाक तले धड़ल्ले से अपनी मार्केटिंग करने समेत गैर कानूनी तौर पर फाइलों की खरीदो फरोख्त में भी मुलविस है, जबकि RDA इंतजामिया भी सैफरून सिटी मालकान के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आती है। DG RDA की जानिब से आंजू नामी मार्केटिंग कंपनी को भेजा जाने वाला नोटिस भी मार्केटिंग कंपनी मालकान ने रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया है। यही वजह है कि सैफरून सिटी मालकान की जानिब से सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से तशहीर की जा रही है, जबकि मुतलका इदारे RDA हुकाम ने भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली है। RDA हुकाम छोटी सोसाइटीज के खिलाफ तो भरपूर एक्शन लेते हैं, लेकिन सैफरून सिटी तर्ज की सोसाइटीज के खिलाफ एक्शन न लेना समझ से बालातर है। कैमरामैन उमर के साथ उमैर। कमेर शरीफ में यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के कमीर और जमात इस्लामी कमेर के ज़ेर एहतमाम स्वीडन में होने वाली कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुज़म्मती रैली निकाली गई।
शुरा ने स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी भी की। पीर सैयद हसनैन नकवी और जमात इस्लामी साहिवाल के अमीर अब्दुल्ला अफजल बलोच ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा कि कुरान पाक हमारी मुकद्दस किताब है, हम इसकी तौहीन पर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुरा ने कहा कि हम मुसलमान अपनी जान से ज़्यादा कुरान पाक को मुकद्दम रखते हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करके मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया। शुरा ने मुतालबा किया कि आलमी सतह पर इसका फौरी नोटिस लिया जाए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम भी उठाए जाएँ। आपको एक बार फिर आगाह करें कि कमेर शरीफ में यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमेर और जमात इस्लामी कमेर के ज़ेर एहतमाम स्वीडन में होने वाली कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुज़म्मती रैली निकाली गई। शुरा ने स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी की। पीर सैयद हुसैन नकवी और जमात इस्लामी साहिवाल के अमीर अब्दुल्ला अफजल बलोच ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा कि कुरान पाक हमारी मुकद्दस किताब है, हम इसकी तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में हमेशा की तरह इस बार भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी है। इसके अलावा आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करके मुसलमानों के जज्बात को मशरूह किया गया। शुरा ने मुतालबा किया कि आलमी सतह पर इसका फौरी नोटिस लिया जाए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम भी उठाए जाएँ। खबर शामिल करते हैं जंड से, जहां पर नवाही गांव चोरा शरीफ में पीर सैयद सादत अली शाह की क़यादत में स्वीडन में होने वाली कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुज़म्मती इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में तमाम मसालिक के उलमाए कराम समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। इजलास से खिताब में उलमाए कराम ने स्वीडन में होने वाली कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और हुकूमत से सख्त एहतजाज और बाइकॉट का मुतालबा किया है। इजलास में महरम के हवाले से भी इस अज़म का अयादा किया गया है कि अमन, मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ दिया जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट लियाकतपुर और नेशनल प्रेस क्लब के सदूर सैयद आमिर शाह मलिक हशमत आवान ने कहा कि स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। उनका कहना था कि यहूदियों की नापाक जसारत को रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में इस मसले को उठाए। कुरान करीम की हुर्मत हमारी रेड लाइन है। इस घिनौने फाल के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा का पुरअमन एहतजाज वक्त की अहम ज़रूरत है। इस मौके पर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के सिलसिले में अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया और हुकूमत पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा से वाक़े में मुलव्वस अफराद को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। स्वीडन में अदालती हुक्म पर कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ हाफिजाबाद में रैली और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, जिसमें ज़िला भर के सहाफ़ती तंजीमों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती दुनिया की सबसे बड़ी दहशत गर्दी है। इस तरह के घिनौने अमल से मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला गया। उन्होंने कहा कि दुनिया को अमन और सलामती की मिसालें देने वाले यहूद व निसार आज इस्लामिक फोबिया का शिकार हो चुके हैं। इस्लाम अमन और सलामती का दीन है। पाकिस्तान में अक़लियतों का मालो जान महफूज और मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। अक़लियतों की इबादत गाहों को मुसलमानों की मसाजिद से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। एहतजाजी रैली में शुरा ने स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ अहमदपुर शर्किया में भी एहतजाजी रैली निकाली गई है। रैली मुख्तलिफ बाजारों से होते हुए रमजी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली का इनकाद अंजुमन ताजरान के ज़ेरे एहतमाम किया गया, जिसकी क़ियादत मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर ने की। रैली के शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिस पर स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका ने स्वीडन के सफ़ीर को फौरी मुल्क बदर करने का मुतालबा भी किया। मुकर्ररी ने खिताब करते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात पर आलमी बरादरी को सख्त नोटिस लेना चाहिए।
आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ अहमदपुर शर्किया में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ बाजारों से होते हुए रमजी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली का इनेकाद अंजुमन ताजरान के ज़ेरे एहतमाम किया गया। और दूसरी तरफ स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर डिस्ट्रिक्ट बार उकाड़ा की तरफ से भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। इस हवाले से जनरल सेक्रेटरी जुनैद इकबाल का कहना था कि कुरान मजीद एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो ज़िंदगी के हर पहलू की रहनुमाई करता है। स्वीडन वाक़े पर वकला बरादरी सरापा एहतजाज है, इस अमल की भरपूर मजम्मत करती है। उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस और इस्लामी ममालिक से मुतालबा करें कि फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा से इस मामले पर रजू किया जाए। बसूरत दीगर वकला इस्लामी बरादरी के साथ मिलकर भरपूर एहतजाज करेंगे। टंडुवाला यार में सीवरेज का नाकिस इंतजाम। म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 1 में बगैर बारिश से गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। अहले इलाका का एहतजाज करते हुए कहना था कि मुंतखब नुमाइंदे वोट लेने के लिए आते हैं और फिर सालों साल नजर नहीं आते। सीवरेज के नाकिस इंतजाम के बायस गटरों का गंदा पानी घरों में भी दाखिल हो जाता है। गंदा पानी खड़ा रहने के बायस मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। मच्छरों की अफजाइश के बायस रातों की नींद हराम हो चुकी। कई बार शिकायत के बावजूद कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। वकीलों ने हुकूमत से फौरी इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर आगाह करें कि टंडुवाला यार में सीवरेज का नाकिस इंतजाम। म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 1 में बगैर बारिश ही गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। अहले इलाका का एहतजाज करते हुए कहना था कि मुंतखब नुमाइंदे वोट लेने के लिए आते हैं और फिर सालों साल नजर नहीं आते। सीवरेज के नाकिस इंतजाम के बायस गटरों का गंदा पानी घरों में भी दाखिल हो जाता है। गंदा पानी खड़ा रहने के बायस मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। मच्छरों की अफजाइश के बायस रातों की नींद हराम हो चुकी है। कई बार शिकायत के बावजूद कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। वकीलों ने हुकूमत से फौरी इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब हरिपुर की तहसील खानपुर का डंपिंग पॉइंट आवाम के लिए दर्द-ए-सर बन चुका है। ईद के दिनों में कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें फेंकने से ताफुन और बदबू से जीना महाल हो गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राशिद महमूद की रिपोर्ट में। टीएमए खानपुर का डंपिंग स्टेशन आवाम के लिए दरसर बन गया। जानवरों की अलाशियों और फजराजात की वजह से तरनावा, मोड़ा गजन, चोई, शुआल और दीगर वादियों में शदीद तफन के बायस वबाई अमराज फूट पड़ने का खतरा। डीसी हरिपुर के वाजे के मात के बावजूद टीएमए खानपुर खरमस्तियों में मसरूफ। सैनिटरी इंस्पेक्टर सबकी आंखों में धूल झोंकने की पॉलिसी पर कारफरमा है। सैनिटरी इंस्पेक्टर और इसकी टीम खानपुर हरू के किनारे डंपिंग स्टेशन में इन अलाशों को ओपन फेंकते आ रहे हैं, जो मोड़ा गजन, छोई, शुआल, तरनावा और दीगर वादियों के लिए शदीद अबस और गर्मी के मौसम में ताफन का बायस बन रही हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहले इलाका का कहना था, ये हमारे पास फेंका हुआ है गंद। इन लोगों ने ये इधर हमारा माल वगैरह आता है, ये इसमें सुई वगैरह, ये टीके के सिरिंज वगैरह खा के 2 बैल पहले मार गया और 1 अभी मार गया। और इसका बदबू है, ये चमड़ा वगैरह सब फेंका है। इसको ये लोग ज़मीन में दफन नहीं कर रहे हैं। ये इसके रोज़ाना 2 दफ़ा हमने मना किया, लेकिन वो लोग फिर भी फेंक रहे हैं। इधर घर है और सामने, और इधर बदबू आ रहा है, इधर कचरा फेंक रहे, तो इसको दफन कर दो, मेहरबानी करो प्लीज। हमारा इधर घर है सर जी, वो लोग वो गंदगिरी नहीं है इधर डालने, हम रोटी नहीं खा सकते हैं ना। वो घर भी ज्यादा, 100 से भी ज्यादा घर है, उसके ऊपर मिट्टी भी नहीं डालने। वो कचरा इसको बोल इधर से उठाओ या इसके साथ मिट्टी डालो। अहले इलाका का मजीद कहना था कि टीएमए के पास वसाइल होने के बावजूद काम में चश्मपोशी मानी खेज है। इलाके के आवाम ने डीसी हरिपुर से मुतालबा किया है कि इस मुजरमाना गफलत पर सख्त से सख्त नोटिस लें और अलाशों को फौरी ज़मीन में दफन करने के फौरी इकदाम सादर फरमाएं ताकि इर्द गिर्द की रिहायशी वबाई अमराज से बच सकें। राशिद महमूद, कोहिनूर न्यूज़, हरिपुर। अब तो घबरा कर कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना मिला तो किधर जाएंगे। उकाड़ा में मानसून की पहली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नवाही गांव के जनाजगाह के बाहर बारिश और सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया। इलाका मकीनों की गंदे बदबूदार पानी से मरहूम का जनाजा ले जाने की वीडियो कोहिनूर न्यूज़ को मौसूल हो गई। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार इंतजामिया को शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा।
جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا میں مونسون کی پہلی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ نواحی گاؤں کے جنازگاہ کے باہر بارش اور سیوریج کا گندا پانی جمع ہو گیا۔ علاقہ مکینوں کی گندے بدبودار پانی سے مرحوم کا جنازہ لے جانے کی فوٹیج کوہ نور نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار انتظامیہ کو شکایات درج کرائیں لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ علاقہ مکینوں کی اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے ٹانک کے گاؤں گل امام سے الیکشن مہم کا آغاز کر دیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہی ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آدم خان کنڈی کی رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر مملکت فضل کریم خان کنڈی نے ٹانک کے گاؤں گل امام سے الیکشن مہم کا آغاز کیا۔ ٹانک میں ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ جلسہ گل امام میں منعقد ہوا جس میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ پی 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 ضلع ٹانک کے صدر سردار ہدایت اللہ خان گنڈاپور نے فیصل کریم کنڈی کو روایتی پگڑی پہنائی اور پی 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 میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو ٹوپیاں پہنائی گئیں۔ وفاقی وزیر مملکت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سوات آئے تھے، انہوں نے وہاں پر باقاعدہ اپنی الیکشن مہم کا اعلان کیا ہے اور اس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے پاکستان میں اپنی الیکشن مہم کا آغاز کیا ہوا ہے۔ جس طرح تیر کے نشان پہ کینڈیڈیٹ دے گی، ہم بالکل الیکشن لڑیں گے، پارٹی کا جو حکم ہوگا۔ اور باقی رابطے میں عید کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شمولی تقریب جو ہے اور بھی ہو رہی ہے۔ اس وقت بھی ہمارے ساتھ 3 MNAs آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید سے پہلے شامل ہوئے ہیں۔ پہ جس طریقے سے ماضی کی حکومت نے روڑے اٹکائے تھے، IMF کی جو ہے آپ نے دیکھا کہ پوری ٹیم ورک کے ساتھ، چاہے وہ پرائم منسٹر ہیں، چاہے فائنانس منسٹر ہے، چاہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے فارن منسٹر ہیں، انہوں نے پوری محنت کی۔ IMF کے ساتھ ہماری ڈیل ہو چکی ہے اور ہماری کوشش ہے اور انشاءاللہ بھرپور کوشش ہے کہ اگر ہم حکومت میں آتے ہیں تو اگلی IMF کی ڈیل ہم نہ کریں اور ہم پاکستان کو اپنے پاؤں پہ جو ہے وہ کھڑا کریں۔ ٹانک کا شہر گل امام الیکشن سے پہلے پاور شو کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آدم خان کنڈی۔ مصطفیٰ آباد میں شہدائے پولیس اور غازیوں کے احساس میں اخوت یونیورسٹی میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ عید ملن پارٹی کے موقع پر چیئرمین اخوت یونیورسٹی ڈاکٹر محمد امجد ثاقب، DIG محبوب اسلم اور DPO قصور طارق عزیز سندھو نے پولیس فیملیز کے ساتھ کھانا کھایا۔ عید ملن پارٹی میں شہداء پولیس، غازیوں اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں کی فیملیز اور بچوں نے شرکت کی۔ عید ملن پارٹی میں DIG محبوب اسلم، کمانڈنٹ پولیس کالج چونگ نے اپنی آرگنائزیشن المارا کے زیر کفالت 100 بچوں سمیت شرکت کی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ مصطفیٰ آباد میں شہداء پولیس اور غازیوں کے اعزاز میں اخوت یونیورسٹی میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ عید ملن پارٹی کے موقع پر چیئرمین اخوت یونیورسٹی ڈاکٹر امجد ثاقب، DIG محبوب اسلم اور DPO قصور طارق عزیز سندھو نے پولیس فیملیز کے ساتھ کھانا کھایا۔ عید ملن پارٹی میں شہداء پولیس، غازیوں اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں کی فیملیز اور بچوں نے شرکت کی۔ خبر شامل کریں بھاول نگر سے، جہاں ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون کی زیر صدارت ضلع بھر میں کاٹن کی پیداوار کے ڈیٹا کے تصدیقی عمل سے متعلق اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں کراپ رپورٹنگ اور کاٹن کی بوائی کے ڈیٹا کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ ضلع بھر میں منتخب کردہ 250 سیمپل دیہاتوں میں سے 121 کی تصدیق ہو چکی ہے اور 5769 کاشتکاروں کو کور کر لیا گیا ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 2022 کا 68,563 ایکڑ رقبہ اور 2023 کا 78,432 ایکڑ رقبے کی تصدیق مکمل ہو چکی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بہاول نگر میں ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون کی زیر صدارت ضلع بھر میں کاٹن کی پیداوار کا ڈیٹے کو مرتب کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اجلاس بھی منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ مٹیاری اور نواحی علاقوں میں محرم الحرام قریب آتے ہی حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کے
अलम पाक उतार कर नए अलम से तब्दील करने का सिलसिला शुरू हो गया। इस सिलसिले में मोटियारी के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों, अज़ाखाना, मस्जिदों और घरों से अलम पाक की तब्दीली की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली फैजान की इस खुसूसी रिपोर्ट में। मोटियारी और उसके आसपास के इलाकों में मुहर्रमुल हराम करीब आते ही नौबत हुसैनी बजाकर या हुसैन हाय हुसैन की सदाओं से इस्लाम का परचम करबलाए सरजमीन के सिपह सालार शहनशाह बावफा हजरत गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के अलम पाक नहर होने का सिलसिला शुरू हो गया। सिलसिले में मटियारी के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों, अज़ाखाना, मस्जिदों और घरों से अलम पाक नहर किए जा रहे हैं, जिसमें मटियारी की मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया सजादिया, हाशमी इमाम बारगाह जिजियामू बीबी का आलम, मंगनहार का आलम, इमाम बारगाह बिनतल हुसैन, इमाम बारगाह सैयद अली हैदर शाह समेत दीगर इमाम बारगाहों का अलम पाक नहर किए गए हैं, जिसके बाद अलम पाक को रंग साजी का काम भी तेजी से शुरू कर दिया गया है। सराय आलमगीर के नवाही इलाके बैसा में शानदार उखाड़ा बैल कराह मुनक्किद हुआ, जिसमें पंजाब और आज़ाद कश्मीर के 40 नामवर बैलों की जोड़ियों ने हिस्सा लिया। उखाड़ा बैल कला पंजाब के कदीमी सकाफत है, जिसको पंजाब के ज़मींदारों ने अब भी कायम रखा हुआ है। बैसा में सजने वाले अखाड़ा बैल करा में ओवरसीज़ रहनुमा राजा जावेद अख्तर राजगान के नामवर बैलों की जोड़ी ने मैदान मार लिया और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस मौका पर जोग मालकान अपनी बैलों की जोड़ियों की शानदार कारकर्दगी पर भंगड़े भी डालते रहे। आपको अपडेट करें कि सराय आलमगीर के नवाही इलाके बैसा में शानदार अखाड़ा बैल कराह मुनक्किद हुआ, जिसमें पंजाब और आज़ाद कश्मीर की 40 नामवर बैलों की जोड़ियों ने हिस्सा लिया। अखाड़ा बैल कराह पंजाब की कदीम सकाफत है, जिसको पंजाब के ज़मींदारों ने अब भी कायम रखा हुआ है। बैसा में सजने वाले अखाड़ा बैल कराह में ओवरसीज रहनुमा राजा जावेद अख्तर पट्टी राजखान की नामवर बैलों की जोड़ी ने मैदान मार लिया और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस मौका पर जोग मालकान अपनी बैलों की जोड़ियों की शानदार कारकर्दगी पर भंगड़े भी डालते रहे। अब आपको बताएं कि कराची मलीर मॉडल कॉलोनी में राजपूत सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। ईद मिलन पार्टी में पुलिस अफसरान समेत आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नूर अमीन की इस रिपोर्ट में। कराची मलीर मॉडल कॉलोनी में राजपूत सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सदर राना एहसान के जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें राजपूत कौम के पुलिस अफसरान समेत वकील साहिबान के साथ आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मरकजी सदर राना एहसान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 40% पाकिस्तान में राजपूत कौम है, जिसमें मुख्तलिफ बरादरियाँ हैं। हम अपने कौम के मसाइल मिलकर हल करेंगे। कराची के 21 हल्कों के अंदर कम अज़ कम 20,000 वोटर राजपूत बरादरी के मौजूद हैं। पाकिस्तान रजिस्टर्ड के तहजीर तमाम राना मैरिज एलान मॉडल कॉलोनी में मुनक़द हुई, तो ये एक सिलसिले की कड़ी है कि हम राजपूत जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में 40% राजपूत जो है, और इसमें हमारी बहुत सारी गोतें हैं, बट्टी हैं, चौहान हैं, घोड़ेवा हैं, मंज हैं, कायम खानी हैं, खानजादे हैं। तो इस तरह जो है हमारी जातें गोतें इतनी हैं कि हम सिंधी राजपूत भी हैं, हम सराइकी राजपूत भी हैं। तो इस तरह जो है हम चाहते हैं कि राजपूत को ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि ये एक खालस ब्लड है और इसकी जो मसाइल हैं वो मैं समझता हूँ कि हम बरादरी के लोग ही हल कर सकते हैं। राना एहसान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम मिलकर ही कौम के मसाइल हल कर सकते हैं। नारंग मंडी के सरहदी इलाके बरियार में पीर सैयद अमानत अली शाह और पीर सैयद बशारत अली शाह गिलानी के उर्स मुबारक पर तमाचेदार कबड्डी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी के सरहदी इलाका बरियार कोना में मारूफ रूहानी बुजुर्ग पीर सैयद अमानत अली शाह गिलानी और पीर सैयद बशारत अली शाह गिलानी का 2 रोज़ा सालाना मुबारक गति नशीन पीर सैयद शराफत अली शाह गिलानी और पीर सैयद रफ़ाकत अली शाह गिलानी की ज़ेर निगरानी इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी रोज़ कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से चोटी के पहलवानों ने हिस्सा लिया। मेहमान खुसूसी चौधरी शौकत अली फौजी, चौधरी मोहम्मद नवाज भट्टी थे। रेफरी के फ़राइज़ डॉक्टर सरदार मोहम्मद ने सरंजाम दिए। कबड्डी मेला को देखने के लिए दूर दराज से आवाम की कसीर तादाद में शिरकत की और जोश व खरोश का भरपूर मुजाहरा किया। गद्दी नशीन पीर सैयद शराफत अली शाह गिलानी और पीर सैयद रफ़ाकत अली शाह गिलानी की जानब से कामयाब पहलवानों को नकद इनामात से नवाजा किया। इंटरनेशनल चोटी के पहलवानों ने
कबड्डी को 4 चांद लगा दिए। इस मौका पर चौधरी शौकत अली फौजिया बरियार कोना ने हुकूमत से मुतालबा किया कबड्डी को सरकारी सतह पर उजागर किया जाए। ये सदियों पुराना खेल है, अब सिर्फ मेले ठेलों तक महदूद होकर रह गया है। हुकूमत इसी तरफ खुसूसी तवज्जो दे। ये पंजाब की सकाफत है, इसे खुदारा ख़त्म न किया जाए। आज भी देहातों में जौक दर जौक दूर दराज से अवाम स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती का वाक़या आलम इस्लाम के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत किया गया। कुरान जलाने के वाक़े में एक इराकी नयाद शख्स मुलविस है। स्वीडिश अदालत ने ईद उल अज़हा के दिन कुरान पाक की बेहुरमती की बाकायदा इजाज़त दी थी। स्वीडिश हुकाम की जानिब एहतजाज करने वाले गुस्ताख को बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। वाक़े के खिलाफ दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। मज़ीद जानेंगे इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की मरकजी मस्जिद के बाहर खड़े होकर एक इराकी निज़ाद शख्स ने कुरान पाक को नजर आतिश किया। वाक़या 28 जून बुध के रोज इस वक्त रोनुमा हुआ जब दुनिया भर में मुसलमान ईद उल अज़हा का मजहबी त्यौहार मना रहे थे। स्वीडन के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक जिस शख्स ने कुरान को नजर आतिश करने की इजाज़त तलब की थी वो 30 साला एक इराकी मुहाजिर है जो कुरान पर पाबंदी चाहता है। बाद अज़ा पुलिस ने कुरान की बेहुरमती करने वाले शख्स पर एक नस्ली और कौमी ग्रुप के खिलाफ इश्ताल अंगेजी फैलाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कर ली। हालांकि सूरत हाल इसके बरअक्स है। स्वीडिश अदालत ने बाकायदा बेहुरमती की इजाज़त दी और स्वीडिश हुकूमत ने गुस्ताख को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। इस मंजर को देखने के लिए तकरीबन 200 अफराद वहाँ जमा हुए थे, जिनमें से कुछ मुखालफत करने वाले मुजाहिरीन भी थे। इस मौका पर एक शख्स को पथराव करने की कोशिश के इल्ज़ाम में हिरासत में भी ले लिया गया। स्वीडन में शाज़ो नादर ही मुजाहिरों पर पाबंदी आयद की जाती है, चाहे मुजाहिरे दूसरे ममालिक में इश्ताल अंगेजी का सबब ही क्यों ना बन जाएं। मगरिब में एक सोचे समझे मंसूबे के तहत शायर इस्लामी का मजाक उड़ाया जाता है। कुरान पाक की मुख्तलिफ तरीकों से बेहुरमती की जाती है और शान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया जाता है, जबकि इस्लाम दुश्मन इनासिर की जानिब से ऐसे मकरूह वाक़यात को इजहार राय की आज़ादी के खाते में डालकर मलऊनों की हौसला अफजाई की जाती है। वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब समेत दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक ने शदीद एहतजाज किया और वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल आने पर स्वीडन की तरफ से एक बयान जारी हुआ और इस वाक़े को एक शख्स का अमल करार देते हुए खुद को बरी जमा दे दिया। लेकिन ज़राए के मुताबिक वाक़या एक सोची समझी साजिश है जिसमें स्वीडिश हुकूमत, अदालतें शामिल हैं जिन्होंने ऐसे घिनौने वाक़यात की इजाज़त दे रखी है। रिपोर्ट आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स और ख़बरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।